I welcome you all to HVS Hospital. HVS is a heart and vascular super specialty hospital. We are a group of cardiac and vascular setup where we do bypasses, angioplasties, and such complex therapies. Which big hospitals, which will do, they will charge a lot, in terms of the scope. Our hospitals, being a medium-sized hospital, we are very budget friendly with the patients, very economical, and at the same time the expertise of doing such complex therapies exists with us because of a dedicated only heart and vascular team. We do only heart. All the patients who are there here, it's only and only heart. We don't do oncology, we don't do any other surgeries. Today we are all gathered because I just opened up, and before many of you were here. There are only three countries in the world which do such therapy. Okay, one is USA, the third is China, second is China, and the third is India. So it really makes us proud that we were part of making this therapy, because when this therapy came in, and as you know that medicine works in a very different way. First we have to prove that this works in a small subset of patients. The DCGI, that is the Drug Control General of India, sees that it works well, and then gives approval for commercial release. So same way, when that happened, the first patient in Maharashtra was enrolled in this hospital, and that patient happens to be outside. Once we all finish, we'll come to know how this therapy changed his life. From first-hand information, you'll come to know as to what actually happened. So we are part of it, and once we submitted the data to DCGI, they found that this therapy was revolutionary. That is the time when we got approval and we started commercial use of this therapy. And India was there, right up there. Countries which have gone on the moon, lesser than those numbers, the countries have this therapy. So it really makes us proud that our Make in India initiative has done so much. And let me introduce my team. And this is my colleague, Dr. Meghav Shah. He is trained in UK, Liverpool. Dr. Meghav, can you introduce yourself? Yeah, so first of all, thank you everyone for gathering me here. And so my name is Dr. Meghav Shah. I'm a structural and interventional cardiologist like Dr. Ankur. And so basically, as you know, we are all cardiologists. After that, I did my training in the UK for a couple of years, where we kind of mastered this art of, doing complex procedures without opening up the chest, like replacing the valves and the clips and all. So, we always, in fact, I always thought that, वहाँ पे अगर इतना होता है, so why not here? And that is where Merrill came in, and they partnered with us, and we found this device. And it's similar to, akin to what the devices we were using in the UK at that time, but that was from the US. So this is something which is more affordable to patients because it is made in India. But yes, the quality and the devices that we have used till now, so we would have done around 20 procedures till now, and the results are great. And India is always a very cost-sensitive market, and so without compromising on the quality, I think they've done a good job. And yes, so these are imager and... So hi, I am Dr. Gaurish Shinde. I am the anesthetist as well as the interventional echocardiographer. My role in this procedure and this therapy is that of an anesthetist. My role actually is of dual nature. So I am as well as the anesthetist, I am something called as a procedural echocardiographer. So this therapy, it is akin to not opening the chest and repairing the heart valve. So the patient is first sedated, is kept under anesthesia throughout the procedure, and there is something called as a transesophageal echocardiography probe. So that is passed into the esophagus of the patient, and that gives us continuous guidance, the real-time guidance about the status of the leak, of the mitral valve leak, and that is my job. So my job in this team is first to take the patient in, sedate, put in the probe, and then show the interventional cardiologist, that Dr. Ankur and Dr. Meghav, the exact location of the leak, so that they are able to pass a small catheter through the groin up to the mitral valve, position the clip according to the leak, and then clip precisely and at the correct point of the mitral valve. So this is kind of a revolutionary thing. Without opening the chest, you are able to repair the heart valve, and this is not only a revolution, but we could get it so fast. And all of us were, as a team, we were a part of the trial procedure, the trial that was conducted by the Merrill in cooperation with the DCG. So I'm very proud about my team, and we could do this and we could achieve that is fantastic.
And this is Dr. Harshad Sagar. He's our fourth part of our team. Dr. Harshad is an interventional cardiologist. Dr. Harshad, just a few words. Yeah, so I am Dr. Harshad Sagar, an interventional cardiologist, and I'm happy that I'm part of this team. And this therapy definitely has improved the quality of life of the patient. So I'm happy with the team and what we are doing. Thank you very much. So if you can have the seat, we can start the presentation. इस चीज के लिए अभी तक अपने पास में कुछ नहीं था. अपने को ओपन हार्ट सर्जरी करके वो वॉल को चेंज करना पड़ता था. अभी ये थेरेपी के द्वारा हम पैर के रास्ते से जाके जो लीकी वॉल्व है, जो वॉल्व प्रोलैप्स हो रही है, जो बंद नहीं हो रही है, जो अंदर की तरफ खुल रही है, जो कैप छोड़ रहा है, उसको हम क्लिप लगा के दोनों कोनों को नजदीक लाते हैं और उस वजह से जो लीक होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट की जो दुविधा है, जो सिम्टम्स है वो कम हो जाती है. यहाँ और पीछे नहीं जाएगी, यहाँ से ये बाहर निकलती है. अभी हम जो वॉल के बारे में बात करने वाले, ये वॉल के बारे में बात कर रहे हैं. इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल. ये हार्ट के लेफ्ट साइड, मतलब स्वच्छ खून जो आती है आपकी लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर और नीचे के चेम्बर के बीच में होती है. सो ब्लड यहाँ से लंग से आके ये वॉल के द्वारा नीचे जाके यहाँ से पूरे शरीर में जाती है. ये वॉल जब लीक करती है तो पूरी की पूरी ब्लड जो है यहाँ से लंग्स में चली जाती है और उस वजह से सांस फूलने लग जाती है. पेशेंट सो नहीं पाता. जैसे हमारा पहला पेशेंट है, वो एक वेजिटेबल वेंडर था. वो पिछले 4-5 साल से सो नहीं पा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू लाई डाउन फ्लैट. वो रात को कुर्सी पे सोता था या पिलो तकिया डाल के सोता था, इतने डिस्ट्रेस में था. और वो थोड़ा भी चले आपने उसका बोझा उठा के वो कर नहीं पाता था. और बिकॉज ऑफ दिस थेरेपी एंड और हार्ट पंपिंग सिर्फ 20%. वो में हम केस डॉक्टर मेगा वो केस दिखाने वाले हैं आपको. आप देखोगे फ्री कैसे लीक था और पोस्ट कैसे. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाना, फटीग, थकावट, एक्सेसिव थकावट अगर किसी को होती है तो फटीग, हैकिंग, कॉफ. तो कोई लोग को सांस फूलती, कोई सिर्फ कॉफ के साथ आते, तो ये कार्डियक सिम्टम हो सकता है. खांसी, सिर्फ खांसी आना, और वो भी रात की खांसी. हार्ट का पेशेंट आप सुबह में देखोगे ना तो एकदम ही तंदुरुस्त और अच्छा लगता है आपको. जैसे रात हो जाती है वो सोता है, उस समय उसकी डिस्ट्रेस या उसकी तकलीफें बढ़ जाती है. रात की खांसी ये हार्ट का एक लक्षण हो सकता है. उसके बाद में एक्सेसिव यूरिनेशन, क्योंकि शरीर में पूरा पानी भर जाता है, क्योंकि हार्ट पंप करके बाहर नहीं डाला, लीक हो रही है अंदर, बाहर जा ही नहीं रही. पैरों में सूजन, एक्सेसिव यूरिनेशन, ये एक सिम्टम हो सकती है. ब्लड आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसके लिए फेंटिंग, क्योंकि आपके मस्तिष्क में या आपके जो ब्रेन में है उसमें ब्लड न जाने की वजह से आपको फेंटिंग एपिसोड्स हो सकती है. सोलन और एंकल फिट्स, पानी भर जाना पैर में, सूजन. तो पैर देखिए, कभी भी आप पैर देख तो सांस किसकी फूलती है, अगर पैर सूजी है तो हार्ट की तरफ जाती है और लीकेज एक कारण हो सकता है. इनेबिलिटी टू एक्सरसाइज, चल ही नहीं पा रहा, फटीग हो रही है तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता इंसान. और डिक्रीज एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती, सिर्फ भूख न लगने का ये एक लक्षण हो सकता है हार्ट का. सो ये सब लक्षणों के साथ में एक हार्ट का पेशेंट आ सकता है आपके पास. और लीकी वॉल्स, दिस leaky walls or mitral regurgitation can be reason for all these symptoms. Is that your good name, please? Dr. Ankur. एक चीज़ जाननी थी, अगर जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इसका इंडिकेशन क्या होता है? हार्ट की प्रॉब्लम का? जी हाँ. सो थकावट, सांस फूलना, पैरों में सूजन, ओके. छाती में दर्द करना और मतलब एक्सेसिवली आप थक जाते हो उसमें, ये आपके हार्ट के लक्षण हो सकते हैं. और इसका जो चेकअप होता है, जैसे लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराइए, ECG कराइए और 2D इको कराइए, एंड लास्ट में एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये फोर प्रोसीजर इसका. तो कैसे होता है ये सब डिपेंड करता है आपको सिम्टम्स क्या है पहले और कुछ स्टेज पे हो. जैसे आप अगर बहुत ही इमरजेंसी में हो, छाती दर्द कर रही है, अटैक आ गया है, तो आपको ये पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना. डायरेक्टली आपको गोल्डन आवर के कंसेप्ट में एंजियोप्लास्टी करवाना है, ग्राफी करके. ब्लॉक है जल्दी निकाल. लेकिन आप क्रॉनिक हो, मतलब आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 दिन से हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए हो, आपको पता नहीं है गैस है क्या है, तो आप इको करते हो, आप स्ट्रेस टेस्ट पे भगाते हो और फिर देखते हो उसमें चेंजेस है कि नहीं. तो वो एक चीज़ है. अभी एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं CT एंजियो. CT एंजियो वो एक टेस्ट है जो रेवोल्यूशनरी है, जो अपने 10% ब्लॉक पे आपको पिकअप कर लेता है. जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जो डायबिटिक है, उनमें कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं. स्ट्रेस टेस्ट वो टेस्ट है जो 70% और प्लस ब्लॉक को पकड़ता है. CT एंजियो वो टेस्ट है जो 10-20% ब्लॉक भी पकड़ लेता है. तो वो ऐसे ब्लॉक पर पकड़ने से हार्ट डिजीज़ की एक ब्यूटी है कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है. दवाइयाँ चालू करके आप 10-20% को 10-20% ही रख सकते हैं. आप उसको 70-80% होने नहीं देते, तो अटैक आने की शक्यता कम.
सो अलग अलग जगहों में अलग अलग सबसेट्स में अलग अलग टेस्ट करते हैं आप, और अलग अलग तो जैसे अगर किसी ने एंजियोग्राफी किया उसको बोला गया 20% या 30% और 40% ब्लॉकेज है, तो इस स्थिति में क्या उसको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए या कोई दूसरा 70% के नीचे अगर ब्लॉक रहा आप उसको दवा पे रख सकते हो, 70% के ऊपर ब्लॉक रहा तो उसको आपको एंजियोप्लास्टी लगती है। लेकिन कभी कभी 100% ब्लॉक भी बहुत नीचे की जगह है तो फिर आप कुछ नहीं करते, दवा पे रख दो। इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ ब्लॉक और लोकेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर लोकेशन बहुत ऊपर है और 50% भी है तो शायद आप स्टेंट करो, लेकिन लोकेशन बहुत नीचे है और 100% भी है उसको छोड़ देते हो। नॉर्मली 70% प्लस ब्लॉक्स को आप एंजियोप्लास्टी करते हो, 70% के नीचे ब्लॉक्स को आप मेडिकल मैनेजमेंट करते हो। आप इसको ठीक कर सकते हो क्या? एक होता है क्योर और एक होता है कंट्रोल। ओके, क्योर अलग होता है, कंट्रोल अलग होता है। आप कोई बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बीपी को आप क्योर नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटीज को क्योर बहुत कम लोगों में देखा है, नहीं तो कंट्रोल कर सकते हो, राइट? इससे दवा से आप इसको क्योर नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, कंट्रोल किसको कर सकते हो? सिम्टम्स को कर सकते हो, कॉज को नहीं। आप बोले दवा दे के वॉल ठीक हो जाएगा, नहीं। ट्रीटमेंट जब भी करता है एक डॉक्टर, दो फिलोसफीज होते हैं, ट्रीटमेंट फॉर कॉज, ट्रीटमेंट फॉर सिम्टम्स। इसका अर्थ क्या है? अगर आपको बुखार है और मैं आपको बुखार की दवा दूं तो बुखार तो चला जाएगा। अगर मलेरिया की वजह से आपका बुखार है तो बुखार बार बार आते रहेगा। तो हम कभी भी कॉज को ट्रीट करते हैं, सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करते। यहाँ पे अगर दवा है तो दवा यहाँ पे सिर्फ सिम्टम्स को है, कॉज को नहीं है। आप वॉल को ठीक नहीं कर सकते हो, उसको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दवा से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो। और अभी तक एक ही चीज थी, सर्जरी। सर्जरी ओपन करके ये वॉल को आप चेंज कर देते हो। ये ऐसी वॉल है, स्माइली फेस जैसे वॉल। ये वॉल को माइट्रल वॉल 2 लीफलेट की वॉल होती है। यहाँ पे ये जो वॉल है, आपको गैप जो दिखाई दे रहा है उसमें वो लीक हो रही है। एक लीफलेट अंदर आ रहा है, एक लीफलेट बाहर की तरफ। तो बीच के जो गैप में उससे जो ब्लड पीछे नहीं आना चाहिए, दोनों गैप बंद होने चाहिए। सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, पंपिंग कम है, 20 तक का है। आप कहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे? उस इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट भी लगता है पेशेंट। और हार्ट ट्रांसप्लांट आपको पता है, रोज रोज आपको हार्ट तो नहीं मिलेगा। किडनियां 2 है, ऊपर वाले ने 2 किडनियां दी है, हार्ट तो एक ही दी है, राइट? सो पेशेंट जो ब्रेन डेड होता है, हमारे अनफॉर्चुनेटली छोटा सा विषय से थोड़ा सा डिविएट हो जाऊंगा पर ये सबके लिए है। हमारे देश में दान का कंसेप्ट बहुत पुअर है, स्पेशली ऑर्गन्स को लेके। हम वही अग्नि देते थे या हम दफन हो जाते हैं, पर वही जो मूल्यवान जो ऑर्गन्स है, जो अपन दान करके लोगों दूसरे को एक जीवन दान दे सकते हैं, वो चीज़ हमारे में नहीं है। जैसे कोई कंट्रीज है यूरोप में, आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है, मतलब डिफॉल्ट में आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, आप साइन करो कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। ऐसे कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गन डोनेशन करना है कि नहीं करना है, वो कंसेप्ट एब्सेंट है हमारे। थोड़ा डिविएट हो रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन एटलीस्ट एक ऑर्गन अपना डोनेट कर सकते हैं। अग्नि देख के या दफना के उसको वेस्ट नहीं करें, किसी की तो जीवन बच सकती है। ये 2 चीज़ें दिख रही है आपको, इसके बीचों बीच आपकी वॉल जाएगी और ये वॉल को क्लोज कर देगा दोनों साइड से, और दोनों ये चीज़ बाद में बंद होके नज़दीक ले जाएगी। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ आपके लीफलेट को दोनों को नज़दीक लेके आ जाएगी। अब समझे, जो लीफलेट लीक हो रही थी, अंदर जा रही थी, उसको दबा के एक साथ एक ही इसमें वो दोनों के खांचे में बैठ जाएगा और उससे आपकी लीक बंद हो जाएगी। में आप इंजन ठीक करा रहे हो तो उसमें आप कंटिन्यूसली देखते रहते हो कि कहाँ कितना लीकेज है। लीकेज देख के सटीकता से वहाँ पे क्लिप लगा सकते हो, वो दिखाना मेरा काम है। इको कार्डियोग्राफी पे कंटिन्यूस लाइव 3D इको कार्डियोग्राफी पे 3D मतलब पूरा 3D रिकंस्ट्रक्ट होके आप देख सकते हो। ये क्लिप है, ये दिख रहा है आपको, ये नॉब दिख रहा है, ये नॉब दिख रहा है, ये गोल, ये क्लिप है और ये 2 RFS है। ये दोनों लीफलेट को नजदीक लाया गया वहाँ पे। तो आप इसके आजू और बाजू में जगह है तो डॉक्टर गौरीश दिखाएंगे कि और दूसरा जेट, ये क्लिप करने के बाद और एक जेट है क्या, वो जेट के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर जाके वहाँ पे सेकंड क्लिप लगा सकते हैं। So does it double the cost? अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये 3 देश ये थेरेपी बनाती है। तो एक चीज़ वो है। दूसरी है ये बिना ओपन हार्ट की पूरी थेरेपी है। अभी तक इस चीज़ के लिए कोई और पर्याय नहीं था हमारे पास में बिना ओपन हार्ट। सो ये पहली बार ऐसा हो गया है कि बड़े हार्ट में पंपिंग जिसकी कम है और जिसकी वॉल में लीकेज है, उनके लिए आप बिना ओपन हार्ट जाके क्लिप कर सकते हो और ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है वो हार्ट बिना बंद करे
आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि 2 से 3 दिन में पेशेंट हॉस्पिटल से फिर क्लिप करने के बाद में डिस्चार्ज भी होती है। प्रोसीजर सामान्यतः 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक का होता है। तो हमारे एक्सपीरियंस में अभी जितना एक्सपीरियंस बढ़ते गया है कि हम लेस देन 1 आवर मतलब 1 घंटे के नीचे भी प्रोसीजर्स कर चुके हैं। दूसरी बात, ये प्रोसीजर का कॉस्ट के बारे में आपने पूछा, ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है क्योंकि ये नई थेरेपी है। तो ये प्रोसीजर का कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको अराउंड 20 to 25 लाख के करीब ये प्रोसीजर का कॉस्ट जाता है। ये मुंबई में भी आज देखो तो 300 कार्डियोलॉजिस्ट है, पर इसको करने वाले आप एक हाथ में गिन सकते हो, इतने कार्डियोलॉजिस्ट है जो ये थेरेपी करते हैं, और ये नंबर्स में करने वाले उससे भी कम। सो ये हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में जब पेशेंट आईसीयू में जाता है, आईसीयू की जो टीम है वो टीम भी उतनी ही सक्षम होनी चाहिए, उतनी ही ट्रेंड होनी चाहिए। हाँ, स्लोली एंड स्टेडीली जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी इसमें, जैसे 100-200 क्लिप्स करेंगे, बाकी के टीम्स जैसे बाहर से आएंगे, जैसे हमारे पास में अभी टावी करके थेरेपी है, फीजी से लोग आए हैं, बाहर के देशों में, अभी इंडिया के लोग बाहर नहीं थे, बाहर के लोग इंडिया आते, वैसा पोजीशन हो गया। हमारे यही हॉस्पिटल में लोग बाहर से आके, फॉरेन से आके ऑब्जर्व करते अलग अलग कंट्रीज। वैसे ही हमारे यहाँ पे बाहर के जो हॉस्पिटल से बम्बई के, वो आके जब ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेन होंगे, देखेंगे और फिर बाहर जाके करेंगे, तो हो सकता है कि वो भी टीम ट्रेन हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल कार्डियोलॉजिस्ट की थेरेपी नहीं है, ये पूरी टीम की थेरेपी है। तो पूरी टीम को ट्रेन होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। who had a previous heart attack, हार्ट का पंपिंग कम था जैसे मैंने बोला, सो उनको ये क्लिप डाल के हमने महाराष्ट्र में, ही वॉज द फर्स्ट पेशेंट इन आवर ट्रायल एंड our center, we are proud of it that we were able to, you know, not just be a part of that trial, but we were able to be a part of that patient and change his symptoms and the quality of life that. पहली बार अंजापुली अपने वाइफ के साथ में मेरे पास में आए थे, मेरे क्लिनिक में आए थे, और बहुत सांस फूल रही थी। बोल रहे थे कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं कितने तो भी दिन से सोया हुआ नहीं हूँ, थोड़ा ही चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ कोई भी चीज़ को। तो मैंने जब उनकी तरफ उनका इको किया तब मेरी उनकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 20% थी, और काफ़ी वॉल में बहुत ज़्यादा लीकेज था, माइट्रल वॉल। और इको करते हुए भी उनको सांस फूल रही थी, जब वो सो रहे थे तभी भी उनको सांस फूल रही, पूरा इको करने नहीं हुआ था मुझे पहली बार। तो मुझे लगा था कि वो टाइम पे सिर्फ अमेरिकन क्लिप हुआ करती थी, इंडियन क्लिप तो आई नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि वो क्लिप का कॉस्ट अराउंड 30 लाख तक जाता है, और फिर मैंने उनको बताया कि ये ट्रायल इंडियन कंपनी है, ये ट्रायल कर रही है, आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो बोले डॉक्टर मैं सोच के आपको बताता हूँ। फिर बाद में वो वापस आए मेरे पास में, फिर मैंने मेरिल कंपनी और उनकी टीम को कांटेक्ट किया। तो ये हमारे फर्स्ट पेशेंट थे जिनको हमने वो क्लिप के लिए एनरोल किया, और वो इतना अच्छा सक्सेस था कि हमको खुद को कॉन्फिडेंस हमारे पे आया, थेरेपी पे नहीं, हमारे पे आया कि एक इंसान की लाइफ हम चेंज कर पाते हैं। वो पावर जो हमें मिली वो थैंक्स टू द फैंटास्टिक इनोवेशन विच मेरिल हैज़ डन। पर मतलब दवाइयाँ अच्छे काम करने लगी, बहुत सारी दवाइयाँ दे नहीं पाते आप, जब पंपिंग आपकी इतनी कम रहती है, वो ब्लड प्रेशर और गिरा देती है। कि क्लिप करने का तो प्रेशर्स बढ़ गए इनके, तो बहुत सारी गोलियाँ जो नहीं दे पा रहे थे वो दे पाए हम, और स्लोली एंड स्टेडली इनकी जो पूरी कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। सो ये थी इनकी जर्नी फ्रॉम फर्स्ट टाइम जब मैं उनको मिला, जब उनकी सांस फूल रही थी, टिल अभी जो हमारे साथ बैठे हो। मैं इधर नहीं आता तो 9:30-10 बजे तो 11 बजे मैं ऑफ भी हो जाता। मेरा शरीर में 50-60 किलो तो खाली पानी भर गया, पूरा शरीर इतना मोटा मोटा हो गया, पानी नहीं पी सकता, ना बाथरूम आता था, ना पेशाब बाहर निकलते थे। तो बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, इतना तकलीफ हुआ सर पूछो मत, हम बोलने का अच्छा नहीं लगता। सर का हमारा ऊपर मेहरबानी इतनी। जे हॉस्पिटल में भी अभी आपका मैं ऑपरेशन करने को गया, कम से कम 15 डॉक्टर मेरे को चेकअप किया, बोला तुम्हारा बॉडी वीक रहेगा, तभी पेपर दे के बोला तुम किधर ये माइट्रा क्लिप लगाया, बोला ये डॉक्टर का नाम बताए, बोला ऐसा ज़िंदगी में कोई डॉक्टर तुमको फिट करके नहीं देगा, ऐसा तुम्हारा सक्सेस है एकदम। बोला अच्छा है। फिर वो जे में मेरे को 15-40 लाख का कम तो कोई फिट करेगा नहीं तुमको कैसा लगा है, बोला था डॉक्टर। अभी मेरे को बाथरूम, पेशाब, खाना पीना, आना जाना, चलना बहुत अच्छा है। प्रोसीजर है तो अभी मैंने भी 10-12 प्रोफेसर इनके साथ अटेंड किए मैं भी वॉशअप हुआ हूँ। तो
उसके बाद में जो पेशेंट के जो सिम्टम्स रिलीव होते हैं तो ये इट्स लाइक मैजिक कि जैसे हमारे पेशेंट बोल रहे हैं कि उनका लाइफ ही चेंज हो गया। तो खाली एक थेरेपी से अगर किसी का इतना तकलीफ कम हो रहा है और ये थेरेपी इतना लोगों को अभी कुछ मालूम नहीं है, तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल पीपल दैट दिस सच अ थेरेपी एग्जिस्ट एंड नाउ इट इज़ इन इंडिया एंड उसमें हम काम कर रहे हैं। तो आपके थ्रू भी हम बताना चाह रहे हैं कि ये थेरेपी की अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए और ऐसे जो हमारे पेशेंट हैं अंजापुल जी, ऐसे पेशेंट को उसका बेनिफिट होना चाहिए।